Thank you, Kshitish. Thank you, Nitin. Thank you, Tarun. And thank you, everyone, for inviting me to speak to you guys on this wonderful evening. So, as it very well appears that it's been quite a good day for you, or you're all relaxing probably at your home, and some of you in your office. I also just returned back from my hospital, which is actually, as you see, these are COVID times, and we are very, very sure that the times which are going to be ahead of our life will be pre and post COVID era. So, this is going to leave a significant impact. But what is more important is that while we are dealing with one pandemic, जहाँ हम लोग एक बड़े pandemic से deal कर रहे हैं, वहाँ there is another pandemic that is occurring, and that is the emotional and the mental pandemic. Now I'll be steering you through a beautiful journey, and I'll tell you there is a reason for it. Because as we de-stress ourselves, as you were lightly saying, with a nice evening drink or something to cherish and something to enjoy, it is very important and pertinent for all of us to understand that when you build a house, which is probably one of your right domains, every brick will count. But when you bring your character, your life, every thought will count in your life. Every emotion that you are instilling in your life, that will be counting. So, having said that, let us start our beautiful journey. And today I am going to take you on a very nice journey. आज इससे पहले हम आरंभ करें, मुझे एक बहुत सुंदर कहानी ध्यान में आती है, और वो कहानी है एक कुम्हार की। वो कुम्हार बहुत सुंदर चिलम बनाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन उसने कार्य करते करते एक बहुत ही बढ़िया चिलम बनाई, जिससे हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। और धीरे धीरे जब वो बनाकर रख रहा था, तो थोड़ी देर बाद उसने उस चिलम को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उसने अपना दूसरा बर्तन बनाना चालू किया। तो मिट्टी जो नीचे टूट कर गिरी हुई थी, तो उसने उस कुम्हार से बोला कि भैया, तुमने इतनी सुंदर चिलम अभी बनाई थी, तुमने इसको तोड़ क्यों दिया? तो कुम्हार उससे मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि देखो भाई, मेरा मन बदल गया है। अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब मैं एक सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी उससे मुस्कुराते हुए बोली कि कुम्हार, तुम्हारा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। तो कुम्हार ने बोला, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? तो मिट्टी उससे बोली कि हे कुमार, तुम पहले अगर चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, लेकिन अब तुम सुराही बनाओगे तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। So our life is a consequence of how we define, how we design our life. It's all about balance. It's all about knowing what to hold on to and knowing what to let go. जीवन का सारा जो बैलेंस है, जीवन का जो सारा इंट्रिकेसीज है, वो कंप्लीटली इस पर ही डिपेंड करती है। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ अस, आप जो भी आज हमारे साथ हैं, सभी लोग हैं, we all are a gamut of emotions. Our life, आज मैं देख रहा था ना अभी आप लोगों के साथ, it's very interesting, funny and mixed feeling to have a very homely discussion. So those 15 minutes made me feel that I'm a part of your family, and this is your greatness that you are including me as that. So we must understand that there is nothing called a smooth life. Our life is naturally having beautiful emotions bouncing from one part of the life to the another, and these are going to come and go, come and go. And this should happen, because a smooth sea is never going to make a great sailor. अगर हम लोग अपने घर में ही बैठे रहें, अगर हम लोग सोचें कि समुद्र में तूफान ना आए और हम लोग एक्सपर्ट सेलर बन जाएं, ये हो नहीं सकता। दैट इज वाई हमारे इमोशंस कभी कभी उछाल लेते हैं, हमारे इमोशंस कभी कभी डाउन चले जाते हैं, हमारे इमोशंस कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, एंड आवर लाइफ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दोज इमोशंस. इट इज अ नेचुरल रिफ्लेक्शन ऑफ दोज इमोशंस. बट द की इज how to balance this, how to play around and how to master these emotions. And that is a beautiful art that we are going to understand today. आज मैं एक बात आप सबको बताना चाहूंगा. It took only 3 months. It took only 3 months for this little creature, for this virus, for this invisible creature to bring the whole world, to bring the whole technology, to bring the all estates, to bring the best of the healthcare systems, to bring 200 countries and more than 99% of the population of the world to its feet. Only 3 months. And while this has happened,
we are left with dealing with uncertainty. आज हम लोग जो अपनी लाइफ में डील करते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में अनसर्टेनिटी और नेगेटिव से भरे हुए रह गए हैं. And when the life is full of uncertainties, it is also pertinent to know that everything is possible. We have the choice to create what we want to create in our life. So in today's journey, I will make you understand very simplistic pictures and asking for reflections. And I'm also going to talk about कि हम ऐसा क्यों विचार करते हैं, हम ऐसा क्यों बिहेव करते हैं जैसा हम बिहेव कर रहे हैं. हमारे जीवन में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों ये व्यक्ति बिहेव करता है. और अगर हमको परिवर्तन करना है, then who has to bring this transformation, and what are the simple ways that we can master our emotions. And we will end our session with a couple of minutes, half a minute of meditation, so that we can actually experience peace and joy in our life. आप सब लोगों ने ये कहावत, ये लाइन बहुत सुंदर रूप से सुनी होगी. Do you agree with me or not? Tell me, Kshitij, have you heard this? Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. Isn't it? Mostly it is like that. Every one of us has heard Agreed. it. This is such a common thing, and this is actually, now there is a problem with this. You see, 10% जो हमारे है और 90% the way we reacting. Now it is very, very important for all of us to understand that when we say this, the problem in this quote is this word reaction. When we choose to react in our life, it is often instantaneous. It is often an emotional gamut. हमारा रिएक्शन काफी टाइम अनबैलेंस्ड हो जाता है. इट बिकम्स जजमेंटल. वी स्टार्ट जजिंग पीपल. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा. एंड इट मे ऑफन बी नेगेटिव इन आवर लाइफ. कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है परिवार में, अपने इमोशंस में. यू सी, आवर लाइफ इज बीइंग गवर्न्ड बाय ईगो. यू नो हाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स. जस्ट इमेजिन दैट माई सेल्फ कमिंग बैक टू माई होम, and when I come back to my home, I enter my family and meet my family and introduce themselves that, hi, I am Dr. Mohit Gupta. I'm professor and a chief intervention cardiologist and chief cardiologist to the Parliament of India. Now, this kind of a description wouldn't make any relevance to my parents or family. They would say, come on, what are you speaking? You are a child for us, isn't it? So our ego is often governing our reaction. Our unbalanced, our judgmental nature is often governing our reaction. And I'll tell you why it happens. Look at this. Because there comes a situation. This is a typical Gurgaon jam. Okay, this is a typical Gurgaon jam that we often face in our life. Now, all of you, almost only 20, 25, 30 people who are here with us on this journey. Just imagine और मेरे साथ इस चीज को अपने लाइफ में क्रिएट करना. And then I'll put forth questions to you. हम सब लोग अपनी फैमिली के साथ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गुड़गांव में एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं. वी आई हैव टू गो ऑन द सेम वे. उसी रास्ते से हमको जाना है, उसी मीटिंग के लिए जाना है. एंड वी फाइंड आवरसेल्व्स, ऑल ऑफ अस, स्टक अप इन दिस ट्रैफिक जैम. हम सब लोग इस ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं. सेम रास्ता है, सेम मीटिंग के अंदर जाना है, सब अपनी अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं और इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं. 90 to 95% of the people in this particular situation will behave in one particular way, and 5 to 10% of the people will behave in different situation, in different way. 90 to 95% of the people will get angry, will get restless, will start having various emotions. Some of them, you see, they start honking the car horn of their car. Some of them even come out. कुछ लोग अपनी गाड़ी से बाहर भी निकल आते हैं. कुछ लोग आगे जाके ड्राइवर को भेजेंगे, देख कर, भाई कहां पर फंसे हैं, क्या दिक्कत है. And they get very restless. This is the kind of emotions that we have. Most of us, many of us have these kind of emotions when we are stuck up in a traffic jam. But there is a small group of people, only 2 to 5% of a group of people who choose to remain calm in this situation. उनके ऊपर इस सिचुएशन का कोई भी असर नहीं पड़ता. वो अपनी गाड़ी में बैठे रहते हैं, वो आराम से म्यूजिक सुनेंगे,
इंजॉय करेंगे। वो मीटिंग के लिए कह देंगे भाई आई एम स्टक अप इन अ ट्रैफिक जैम, आई कैन कनेक्ट यू ऑन अ जूम और XYZ, एंड हम लोग इस प्रकार से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बात कर लेते हैं। एज द ट्रैफिक जैम गेट्स इजी, आई विल बी रीचिंग एंड गेट on the destination. So two kinds of reactions, and there is a whole spectrum out of it. Do you agree to this or not? Tell me. Yes or no? 200%. 200% it happens with all of us. Now, my question to all of you, हम सब लोग जो अपने अपने घर पर बैठे हैं, in that same traffic jam, when all 30-40 people of us with our families are stuck up, our reaction in that particular situation of all 30 people will be same or will be different for each one of us? Tell me. What do you think? When we are stuck up in a traffic jam, the reaction, the risk of the behavior of all of us will be same in all these, will be same for all of us or will be different for all of us? Tell me, what will be your answer? Different. Answer. It will be different. Naturally, it will be different. So this goes on to prove that situation तो हम सबके लिए same है. Situation वही traffic jam है, गाड़ी वही है, रास्ता वही है, destination भी वही है, लेकिन same situation is inculcating a different response for all of us, is creating a different response for all of us. So my question to you is the situation responsible for our response, or are we responsible for the way we are behaving in that? What does it go on? We are responsible. We are responsible for the way we are behaving. And look at this magical thing. Why we behave the way we are behaving? This is because some of us are working on an autopilot mode. The moment that stimulus in form of a traffic jam comes, we start reacting. जैसे ही किसी ने कुछ पिंच मारा, हम लोग रिएक्ट कर जाएंगे. अभी देखेंगे ना, हम कहेंगे क्या यार तू हमेशा ही मेरे को ऐसे करता रहता है, क्या है तूने पुरानी बात ध्यान रखी, यू आर बिहेविंग द वे यू आर बिहेविंग विद मी. जैसे ही हमको कोई बात कुछ बोलता है, अपने रिलेशंस को सामने लाइए, अपने परिवार को सामने लाइए, अपने फैमिलीज को सामने लाइए, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को सामने लाइए, सब चीजों को लेकर आइए. कितनी बार ऐसा होता है, अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम तो मुझे हमेशा ही ऐसे कहते रहते हो, तुम हमारी आदत बन गई है तुमको ऐसा कहने के लिए. Without letting the other person complete the thing, we start reacting, and that is called a autopilot or a reactive behavior. But this is 95% of the people. Remember that situation. But there is another 5% of the people who are not having a reactive behavior. They are having a mindful behavior. उनके पास भी स्टिमुलस आता है, लेकिन वो इस रिएक्शन को रेस्पॉन्स में बदल देते हैं, बिकॉज देयर इज अ सिंपल वर्ड कॉल्ड पॉज इन बिटवीन. दे चूज टू क्रिएट अ पॉज इन देयर माइंड. संयम जीवन के अंदर ला. रिप्लेसिंग अवर इंपल्सिव रिएक्शंस विथ थॉटफुल रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्स अ सिंपल पॉज. केवल रुकना. आज हमारा मन सवेरे से शाम तक चलता रहता है, लगातार भागता रहता है, उसको हम लोग यूज करते हैं, अब्यूज करते रहते हैं, और जब मन थक जाता है हम उसको रुकना नहीं सिखाते हैं. वी डोंट अलाउ अवर माइंड टू पॉज. इट इज देन दैट अवर माइंड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ ऑटोपायलट. स्टिमुलस आया, रिएक्ट, स्टिमुलस रिएक्ट, स्टिमुलस रिएक्ट, स्टिमुलस रिएक्ट. लेकिन जैसे ही हमारा मन रुकता है, हमारा रिएक्शन रेस्पॉन्स में बदल जाता है. दैट्स द की दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. दैट इज द क्रक्स ऑफ अवर लाइफ. हमारे लाइफ में मल्टीपल स्टिमुलसेस आएंगे. आज केवल हम लोग अपने बिजनेस की बात नहीं करेंगे. ये तो एक नेचर का छोटा सा स्टिमुलस आया है. मेनी मोर आर कमिंग. एक तरफ से साइक्लोन, एक तरफ से वायरस, एक तरफ से सब कुछ आ रहा है. Look at the stimuluses that each one of you are facing. This is you. We have 31 people who are here. ये आप बैठे हैं बीच में. This is you who is sitting in between. ये आप हैं. The first stimulus that you get is from your family. Look at the stimuluses that you get from your family. अपने relations को देखिए.
अपने फैमिली, अपने माता, अपने पिता, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को आपस में किस प्रकार का हमारा इंटरेक्शन है. What is the level of interactions? Right from morning till evening, there is a continuous exchange of bi-directional stimulus that is happening. Look at the second level of stimulus that we are facing, the professional stimuli in our life. Look at this. क्या हो रहा है बिजनेस को? अरे क्या है, घर में बैठे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिजनेस डाउन है, बिजनेस अप है. Lot of turmoil that is going to happen. Look at the way, what is governing our life? Is ego governing our life, or is something else governing our life? Look at the quality of your personal relations that you are living with. Look at the social relations. आपके अपने family, अपने friends के साथ आपके कैसे relation है. And then look at the relations with nature. आज nature की एक प्रकोप एक वायरस के रूप में आया है. And then we are also facing the policies. और ये सब, all of them, each one of them are going to inculcate a gamut of emotions. और ये सारे emotions कहाँ पे affect करेंगे? ये हमारे अपने मन पर गहरा प्रभाव डालेंगे. वायरस तो एक चीज है, हमारे फैमिली, हमारे प्रोफेशन, हमारे सोशल, हमारे नेचर, हमारे पॉलिसीज, सब टाइम वी आर कंटिन्यूअसली बम्बार्डेड विद वेरियस थिंग्स. And our mind is continuously functioning. Our mind is continuously functioning. क्या करें, कैसे करें, ये करें, वो करें. How are we supposed to behave in this particular situation? Look at this. This is why we need to understand that अगर हमने इस वर्ड पॉज को अपनी लाइफ में नहीं इनकलकेट किया है, लुक एट दिस, अगर हमारे जीवन में ये वर्ड पॉज नहीं है, तो केवल इन 5-6 बातों को अपनी लाइफ में चेक करना है. अगर पॉज है तो वी विल बी गेटिंग रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. लेकिन अगर पॉज नहीं है, देन वी विल बी गेटिंग स्ट्रेस्ड एवरी मोमेंट. आज आप देखो, इट ओनली टिक 2 months फॉर दिस वायरस. और अब भी मार्च के अंदर, अब तो मई जून है, मार्च के अंदर जस्ट 20 days आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ दिस एपिडेमिक, 75% of the people were already complaining that their mental health is much worse as compared to what it was earlier. Today we are already fighting the second pandemic, which is the emotional pandemic. We are all left with only 4 feelings: the feeling of fear, the feeling of panic, the feeling of worry, and the feeling of uncertainty in our life. Predominantly 4 feelings, and they are going to leave us with a lot of turmoil. केवल इन बातों को आप एक एक यहां पर जो आज बैठे हैं ना, केवल इन बातों को चेक करना है. और मैं आपसे उत्तर पूछूंगा, डू वी गेट स्ट्रेस्ड इजीली? छोटी छोटी बातों पर क्या हमारे जीवन में तनाव आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्ट? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम तो ऐसा ही करते हो. ओ, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत परेशानियां हैं. रिपीटेडली गेटिंग स्ट्रेस. क्या छोटी छोटी बातों पर आई स्टार्ट मेकिंग assumptions in my life? I make assumptions and I start defending them. नहीं, मैं right हूँ. I am right. I'm absolutely right. My way is the right way. Look at this. Do we keep on holding grudges for each one of us? अरे पुरानी बात है ना यार, सुना है, अरे ऐसा हुआ था, आपने पुरानी बात को रख लिया और आप मुझसे हर बात में उस चीज का बदला लेते रहते. Not letting go of the old things. This is life without a pause. This is life in which we are captive of our own emotions. Look at this. Do we feel that we are misunderstood? बुरा मत मानना, मेरा मतलब नहीं था ऐसा. बार बार इस चीज का उपयोग करना. So many people come to me every day. सर मेरा मतलब नहीं था आपको ये कहने का, आप मेरी बात को समझिए. You see, if we don't imply in our mind, we will never make it happen in our mind. We are working with our vibrations, and that is why all these things are continuously going to create a whole gamut of emotions. Look at this. Your mind is completely a gamut of all the emotions, a complete emotional package. Look at this. Do we practice blame and get offended easily? छोटी छोटी बातों पर हमको बुरा लग जाता है. उसको मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था यार, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कैसा कह दिया, आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी हर्ट अबाउट. ऐसा उस व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए था. इफ
any of these 7 things is present in our life, that means we are emotionally unstable people. Look at this. And if you don't feel any one of them, if you don't have any one of them, अगर इनमें से एक भी चीज आपके जीवन में नहीं है, log off. This session is not for you. Absolutely not for you. बट अगर हमारे जीवन में ये भावनाएं हमको बार बार आती है, then probably we are captive of our own emotional state. How commonly we label ourselves, yeah, I am an angry person, I'm an anxious person, I'm an irritable person, I'm a happy person. Look at these emotions, repeatedly firing those same emotional features because we are unable to manage our emotions. It is yielding us as a personality. अपने जीवन में किसी व्यक्ति को या स्वयं को लेबल करना, यार ये तो गुस्सैल व्यक्ति है, इसको तो गुस्सा ही आना है हमेशा. Look at this. This is not the way we are supposed to be. We are emotionally stable people. We are naturally emotionally. देखो ना आज भी. Look at the way, look at the importance we give all these things to our life. You have a group of 150 people. Look at the importance that we give to emotions. Only 30 people choose to give importance to their own life out of 150 people association. This is ridiculous that we are all running in a race of materialism. We are creating castles, but we are choosing to lose happiness in our life. We are choosing and bargaining on peace in our life. And that is the most ridiculous part of our life. It's all our choice. It's all our choice. While we can all pile up big homes and lot of bank balance, there is no doubt. But what are we bargaining? We are bargaining our own peace and happiness. Happiness and peace is never in materialistic world. कभी आप में से किसी ने भी सुना है? All of you, आप में से मैं पूछता हूं, have you been able to buy half kg of peace with 1 lakh rupees? Possible or not possible? Do you have ever heard in your life that take 2 lakh rupees and buy 2 kg of love for me? What you want in your life is something that materialism cannot buy. We need to understand that our emotional stability is defined as our ability to withstand these difficult situations. Our emotional stability and calmness is ability to handle adversities, but yet remain productive, positive, and capable throughout. सकारात्मक और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना, अपने मेंटल और इमोशनल स्टेट को मेंटेन करते हुए हर डिफिकल्ट सिचुएशन के ऊपर पार कर जाना, ये आपका इमोशनल स्टेबिलिटी है. लुक एट दिस, लुक एट मी. दिस इज हाउ इट वर्क्स. द प्रेशर ऑफ द सिचुएशन divided by the coping skills. This is what determines your stress. Pressure of the situation above divided by your coping skills will determine your ability to handle stress. This is why we need to understand that if we want to have joy and happiness in our life, we will need to bring ट्रांसफॉर्मेशन. परिवर्तन हमको लाना ही पड़ेगा. वी हैव टू ब्रिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन. और परिवर्तन किसको लाना पड़ेगा? क्या हम परिवर्तन बाहर लाएंगे? देखो इधर, इट्स सो इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू सी, आर वी गोइंग टू चेंज द थिंग्स आउटसाइड? अरे आपको ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए, अरे आप खुश रहना सीखिए. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. लेट मी आस्क यू, अगर आपको किसी इमारत को, या if you are building a house or if you're building a big building, what is the most important thing while building, while creating a beautiful architecture? What is the single most important thing that you first take care of for the stability? Foundation of the building. Yes, that is what the perfect answer. It's the foundation of the building that is important. So if we need to transform, अगर हमको परिवर्तन लाना है, if we need to transform, transformation is never going to happen outside.
इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है. वी हैव टू चेंज द प्रोसेसर. अपने प्रोसेसर, अपनी नींव को ही चेंज कर देना ही जरूरी है. That is what is important for all of us. Look at this. Today, आज हम लोग अपनी लाइफ में एक दूसरे को क्या बोलते हैं? हम सब लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं? जब भी हम किसी को चेंज करने को बोलेंगे, हम लोग एक दूसरे को क्या बोलेंगे? वेरी वेरी कॉमनली आप देखिए, हम एक दूसरे को बोलते हैं, यार इस तरीके से बिहेव मत किया करो, प्लीज बिहेव प्रॉपर्ली, प्लीज बिहेव पॉजिटिवली. बच्चों को बोलेंगे अच्छी तरह अपने बिहेवियर को सुधारो. जब कोई ऐसे आए तो आपका बिहेवियर इस तरीके से होना चाहिए. यस और नो? होता है या नहीं होता? बताइए. सभी लोग बोलते हैं, नहीं बोलते? सर बिल्कुल होता है. सभी लोग बोलते हैं एक दूसरे को. हम भी कहते हैं ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बोलेंगे, यार अभी आप भी लोग क्या बोलते हैं, यार डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट बिहेव प्रॉपर्ली. हाँ, कभी आराम से बात करो, गपशप बाद में करेंगे, वी विल कैरी ऑन. रिमेंबर वन थिंग, आज अपने जीवन में सदा के लिए इस बात को समझ के जाना. While all the institutions, HRs, most of the trainers and everybody, they are trying to change the behavior, it is never possible to change the behavior of a person. Never possible to change the behavior of a person. Why? Because हमारा व्यवहार, हमारा behavior is a function of our belief system. हमारी मान्यताओं का consequence है. जब तक हम अपनी मान्यताओं को नहीं चेंज करेंगे, जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं चेंज करेंगे, हमारा व्यवहार परिवर्तित नहीं हो सकता. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. जब हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं तो हम उनको बिलीफ सिस्टम देते हैं. संस्कार यानी उनको बिलीफ देना. और जब हम उनको पॉजिटिव बिलीफ देते हैं, उनका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाता है. मॉर्निंग में हमने अपने बच्चों को बचपन में क्या संस्कार दिया? हमने उनको सिखाया कि मॉर्निंग में समय से उठना और उठकर ब्रश करना और नहाना आवश्यक है. अब आपके बच्चे उठते हैं रोज मॉर्निंग में उठ के, क्या रोज आप उनको बोलते हैं कि नहाओ और ब्रश करो, या वो ऑटोमेटिकली करेंगे? दे विल ऑटोमेटिकली डू इट. व्हाई? बिकॉज इट्स नाउ इनटू देयर बिलीफ सिस्टम. व्हेनेवर बिलीफ इज रश्ड, it is evidence based and it is logical, our behavior will automatically transform. वो हमारा behavior automatically change हो जाए. So what we are going to do today, आज जो हम सब लोग क्या करेंगे, आज हम अपनी पुरानी मान्यताओं को, अपने ओल्ड कंफर्ट जोन्स को हम लोग एग्जामिन करेंगे. हम लोग उसको देखेंगे. आप लोगों से मैं पूछूंगा, एक एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़ा है, वो अपने आंसर्स आप देना, अनम्यूट करके आंसर देना, और आप देखेंगे योर होल लाइफ, द वे यू आर लीडिंग योर लाइफ विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म. इसको कहते हैं ना, दिमाग के जो जाले होते हैं ना, वो हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे. दे विल एक्चुअली क्लीन अप. कहेंगे वेयर आर वी लिविंग. इट विल गिव यू अ होल न्यू बिलीफ सिस्टम टू इनकलकेट एंड चूज अ लाइफ which is happy, peaceful and prosperous. Okay, so here we go. The first step, very very important for all of us. I will ask one of you to unmute and describe what you are able to see in this picture just in 4 lines. आपको जो जो इस पिक्चर में दिख रहा है, फटाफट डिस्क्राइब इसको कर दीजिए. Okay, Kshitij ji is unmuted. On behalf of all of you, please describe, Kshitij ji, quickly. पियानो का कुछ he is trying to open the cover. आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है? There's a heart. समुद्र दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, कश्तियां दिख रही हैं. वेरी गुड. और पियानो, लैम्प, पियानो दिख रहा है, आदमी दिख रहा है लैम्प जो दिख रहा है, होल्ड अप आदमी होल्ड अप कर रहा है. वो क्या कर रहा है? पियानो के कीज को बजाने की के बजाने की. कर रहा है. एग्रीड? एवरीबॉडी एग्रीज टू दिस और नॉट? नितिन जी, वुड यू एग्री टू दिस और नॉट? Yes or no? Yeah, apparently that is what is. I'm able to see Rajiv ji. I'm able to see many other people. Are you able to see and agree and resonate with me? Yes or no? Yes. Definitely. All of you. Yes. Timmy ji is also there. So all of you are able to see that yes, in this picture, the person is on the seashore. There is a beautiful piano. And what he's trying to do is he's trying to play the piano. And this is a very nice picture. Now, after a few seconds, Kshitij ji, now describe what are you able to see. The same picture, the same sea, the same piano, the same person, the same stress, everything same. लेकिन अब आपको क्या दिख रहा है? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? Relaxing.
He is Relaxing. relaxing, and what appears, he is lying on the piano. Top of the piano. On the top of the piano. See, look at this. The first picture and the second picture. Everything remains same. Nothing has changed in this picture. Absolutely nothing. But what happens is, it's our perspective that is changing. It's our perspective that is changing. My dear friends, we must understand, हम सबको ये समझने की आवश्यकता है, life is all about perspectives. ट्रैफिक जैम सामने ले आइए, वही ट्रैफिक जैम था, हम सब 30 लोग ही साथ में थे, सिचुएशन भी वही थी, जर्नी भी वही थी, डेस्टिनेशन भी वही था, हमारी गाड़ी भी वही थी, हम सब वही थे, टाइम भी वही था, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उस ट्रैफिक की तरफ अलग अलग था. वो हमारा दृष्टिकोण था. And that is why the first and the most powerful life-changing message that each one of us should understand, that when we change the way we look at things, सदा ध्यान रखना इस चीज को अपने जीवन में, नोट कर लीजिए इसको, क्लिक कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर. When we change the way we look at things, the things we look at, they change. When we change the way we look at people, the people we look at change. When we change the way we look at situations, the situations we look at change. It's all about perspectives. एक व्यक्ति एक रास्ते से जाता है, वो कहता है ये रास्ता बिल्कुल सही है और मेरा रास्ता बताया गया बिल्कुल परफेक्ट है. दूसरा व्यक्ति कहता है मेरे पास एक और रास्ता है, हम इस रास्ते से चलते हैं. तो क्या ये कहना सही होगा कि एक व्यक्ति सही है, एक व्यक्ति गलत है, या दोनों व्यक्ति सही हैं? बताइए. Both of them are absolutely right. Absolutely right. It's all about perspectives. आज हमारे जीवन में इमोशनल चेंजेस, हमारे इमोशनल रिएक्शंस क्यों आते हैं? क्योंकि हर परिस्थिति को हम अपने ओल्ड प्रोसेसर की तरह से एनालाइज करते हैं. जो हमारा ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी मान्यता है, जो हमारे अपने कॉमन बिलीफ सिस्टम है, उसको हम लोग उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली चेंजेस आवर लाइफ. दिस कंप्लीटली गिव्स अ डिफरेंट इमोशनल रिएक्शन टू अवर. तो दोस्तों, आज के बाद कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से बिहेव करता है, उससे पहले कि हम उस व्यक्ति पर रिएक्ट करें, उस रिएक्ट को रिस्पॉन्स में बदलने के लिए उस पर्सपेक्टिव को समझना आवश्यक है. इनकलकेट दैट पॉज इन योर प्रोसेसर. तभी कहा जाता है ना, अपने जीवन में बुजुर्गों ने कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि सोच कर करो या समझ कर करो या सोच और समझ कर करो. क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? एनीबॉडी बोलिए. वो समझ कर करो. सोच और समझ कर करो. जो बचपन से हमने बात सुनी है, आप सबने सुनी हुई है बात, सोच कर और समझ कर करो. कभी ये नहीं कहा था सोच कर कर दो या समझ कर कर दो. बिकॉज सोचना और समझना मतलब मन और बुद्धि दोनों साथ साथ कार्य कर रहे हैं. आवर थॉट प्रोसेस इज ऑल्सो वर्किंग, और वो जो पॉज है, जो हमारी बुद्धि है, वो भी कार्य कर रही है. और जब ये दोनों साथ कार्य करते हैं, हमारा आउटपुट निकलता है, हमारा प्रोसेसर सिस्टम हमको बहुत सुंदर रूप से राइट पर्सपेक्टिव देता है. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन आवर लाइफ. जब भी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, मुझे याद है ना, एक बहुत सुंदर कहानी, कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो उसके ऊपर हमारा रिएक्शन, हमारा बिहेवियर हमारे मन की स्थिति पर डिपेंड करता है. तभी किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर कहा, और इस बात को सदा अपने जीवन में अनुभव करना, या आज भी कोई भी सिचुएशन को अपने सामने लेकर आ जाए, कि जब परिस्थिति हमारे सामने आती है, अगर हमारा मन कमजोर है, इफ अवर माइंड इज वीक, तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है. लेकिन अगर हमारा मन स्थिर है, अगर हमारा मन स्थिर है, तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है. और अगर हमारा मन सशक्त है, अगर हमारा मन पावरफुल है,
तो वही परिस्थिति हमारे लिए कुछ करने का अवसर का रूप ले लेती है. इट ऑल इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ अवर स्टेट ऑफ माइंड. अगर हमारा मन पावरफुल है, वी कैन डिजाइन अवर डेस्टिनी. सो इन द मिडल ऑफ एवरी डिफिकल्टी लाइज एन अपॉर्चुनिटी. आज पूरा दुनिया क्या कर रहा है? 200 countries, 95 to 99% of the people, they are seeing difficulty in the current time. हर व्यक्ति अपने घर में अपने आप को करके कोविड की बात कर रहा है, कोविड के बारे में पढ़ रहा है, कोविड को ही इंजेस्ट कर रहा है, कोविड के बारे में डिस्कस करते करते अपने मन में नेगेटिविटी को ले आता है. और उसके बाद अगर हम अपने को डिस्ट्रेस करना चाहें तो पूरे दिन हम अपने को क्या करेंगे? दोस्तों के साथ आजकल मैं देखता हूँ कई लोग लूडो खेल लेंगे, कई लोग घर में तंबोला का सिस्टम नया आ गया है, ऑनलाइन गेमिंग का सिस्टम अलग आ गया है, कई लोग विल गो फॉर अ डिनर और फॉर हैविंग अ ड्रिंक और XYZ. So this is the kind of solutions that people are searching and looking for in these difficult times. But there is a group of people who are using this time to reflect on their own selves, to reflect on their lives. These times, आज वायरस ने आके, इस समय ने आके हमको ये बताया कि जो लोग 100 200 साल के या 50 साल के प्लान्स बनाते थे, 20-30 इयर्स के प्लान लेआउट करते थे, केवल हमको 2 महीना लगा कि वो सारे प्लान्स उसने लाकर हमारे पेपर के साथ हमको घर में पैक करके एवरीथिंग कम्स टू रेस्ट. तब मानव को कल का नहीं पता है, तो वो मानव आज अपने जीवन में हजारों साल की प्लानिंग करके चलता है. In that process, it is not wrong to create plans for 100 years. But if you are creating plan, don't lose that sense of joy and happiness in that journey. उस यात्रा के अंदर अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को खोना ये सही नहीं है. एक बहुत सुंदर कहानी मुझको ध्यान में आती है. ये एक कैप्टन की थी. ये कैप्टन बहुत सुंदर यात्रा पर क्रूज शिप के अंदर लोगों को अपने साथ ले जाता और ले जाकर उनको मंजिल पर पहुंचा देता था, और बहुत बढ़िया तरीके से उनको पहुंचाकर, उनको मंजिल पर पहुंचाकर सबको बहुत खुशी मिलती थी. बीच में तूफान आते, बीच में कभी कभी चैलेंजेस आते. जब भी आता तो शिप को प्यार से साइड से ले जाता. लेकिन एक बारी क्या हुआ कि वो हजारों लोगों को लेकर अपनी यात्रा पर जा रहा था, तो उसके सामने बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा, और उसे मालूम था कि अगर इस तूफान में उसने अपने शिप को साइड में लिया तो उसका शिप डूब जाएगा. तूफानों की लहरें इतनी तेज हैं कि वो भी डूबेगा और हजारों लोग भी अपने जान खो बैठेंगे. तो लोग सोच रहे वो क्या करेगा. उसने बहुत शांति से अपने मन को समय दिया, सोचकर और समझकर कार्य. And what he started doing was, उसने अपने शिप को तेजी से तूफान के बीच में ले जाना आरंभ कर दिया. He started driving towards the storm. लोग उसके पास आए और बोले, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्या, हम तो डूब जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे. उसने कहा, आप शांत रहिए. बहुत टर्बुलेंसेस हुई, लेकिन जैसे ही वो उस स्टॉर्म, उस तूफान के बीच में आया, तो उसने देखा कि वहां पर असीम शांति थी. इट वॉज एब्सोल्युटली साइलेंट. सब तरफ तूफान था, सब तरफ तूफान था, और वहां जाकर उसने अपने शिप को बिल्कुल रोक दिया, बिल्कुल रोक दिया. जब तूफान सेटल हुआ तो उसने अपने शिप को दोबारा आरंभ करके आगे ले जाना स्टार्ट कर दिया. और लोग बहुत हैरान हुए. उसने उनसे आकर पूछा कि कैप्टन, ये तुमने कैसे किया. तो उसने मुस्कुराते हुए बोला कि दोस्तों, जीवन में सदा एक बात ध्यान रखना. इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, in the eye of the storm, you always remain in control. तूफान हमेशा साइड में होता है, लेकिन जब परिस्थितियां और लोग हमारे अनुसार ना हो, when people are not according to the way I want, when situations are not according to the way I want, then the only way we can remain in control is to go into our mind. It's all about your own mind. It's all about unlocking the powers of your mind. It's about making your mind your best friend. जब हम अपने मन को अपना मित्र बनाते हैं, कभी भी मन को आज के बाद ये नहीं कहना कि मन को कंट्रोल करो. It is never possible.
बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग? मैं आपसे पूछता हूँ, कैन यू कंट्रोल योर किड्स? इट्स नॉट नेवर पॉसिबल टू कंट्रोल योर। बच्चों को प्यार से अपना दोस्त बनाकर समझा सकते हैं। योर माइंड इज ऑल्सो लाइक अ किड। उसको आप जब भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, वो छोड़कर भागेगा इधर। लेकिन जब आप उसको अपना दोस्त बना लेंगे तो वो दोस्त आपके हिसाब से, आपके अनुसार चलने लगेगा। दैट इज व्हाट इज द की। तो इसका रीजन क्यों है? क्योंकि आज आपका मन एक इस प्रकार के कमरे की तरह है। इस कमरे में एक लग्जरी रूम है, आपका मन एक लग्जरी रूम है। यू नो, इट्स अ पावरफुल लग्जरी रूम। इसके अंदर लैपटॉप है, आईफोन है, बढ़िया फर्नीचर है, बेस्ट ड्रेसेस हैं, सब कुछ जो मोस्ट मॉडर्न चीजें हैं वो सब कुछ इस कमरे के अंदर है। लेकिन ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, ये क्लटर है, ये स्ट्रेसफुल है, ये नेगेटिव है, ये टर्बुलेंट है, ये केओटिक है, ये हमको उलझा रहा है। इसके अंदर हम कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को क्लीन करते हैं या हम इस कमरे को क्लीन करते हैं तो यही कमरा आपको बहुत सुंदर रूप से क्लैरिटी या एक सुंदर पिक्चर आपके सामने देने लगता है। इट स्टार्ट्स गिविंग यू very very nicely, beautifully, that you can actually see everything clearly. दोस्तों, आज आपको समझना बहुत आवश्यक है। योर माइंड, आप सबका मन, जो आप लोग आज हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़े हैं, आप सबका मन एक दिन में 50,000 संकल्प उत्पन्न करता है। 50,000 thoughts. Out of those 50, this is pure science, this is no imagination. Out of those 50,000 thoughts, 90 to 95% of your thoughts are negative, are waste, are useless and purposeless thoughts. Now imagine if you are constructing a building and out of those building, अगर आपकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट निकलने हैं उसमें से 95% प्रोडक्ट्स उस कंपनी में या उस बिल्डिंग में जो जा रहे हैं, जो उसकी नींव में लगने हैं या ईंटें जो उस नींव में लगनी हैं, वो यूजलेस, नेगेटिव, वेस्ट और पर्पसलेस हैं, then what will be the consequence? Will you call it a positive factory or a useless factory? It will be a useless factory. Only science says 2 to 5% of the thoughts that you generate in one day are positive thoughts, are purposeful thoughts, or are useful thoughts. This is pure science. So, अगर repetitive thoughts हैं, negative thoughts हैं, purposeless thoughts हैं, this reveals the quality of our existence on earth. आप सोचिए, सिचुएशन आती है लेकिन वो प्रोसेसर, वो मन जो कि लगातार नेगेटिव ही सोच रहा है, हर सिचुएशन को पेसिमिस्टिकली देख रहा है, हर सिचुएशन को गलत तरीके से एनालाइज कर रहा है, उस सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव आउटपुट निकलता ही नहीं है। अगर ऐसा प्रोसेसर के थ्रू हमारा सिस्टम जाएगा तो हमारा आउटपुट कैसा निकलेगा? लुक एट दिस ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग। आपका एक एक विचार, आपका एक एक विचार आपके जीवन में आपको एक चॉइस देता है। जब आप सोचते हैं कि मेरे मन में एक नेगेटिव विचार आया, वो आपको एक नेगेटिव चॉइस जनरेट करेगा। जब नेगेटिव विचार नेगेटिव चॉइस जनरेट करता है तो हम लोग नेगेटिव बिहेवियर करते हैं। नेगेटिव बिहेवियर हमको कैसा फील कराएगा? हमको बुरा फील कराएगा। और जब हम नेगेटिव फील करते हैं, हमारे इमोशंस पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे? दोस्तों बताइए। इट विल अगेन बी नेगेटिव इमोशंस। और नेगेटिव इमोशंस हमारे जीवन में किस प्रकार के विचार लाएंगे? दे विल अगेन स्टार्ट ट्रिगरिंग नेगेटिव थॉट्स। तो हमारा रिएक्शन सिचुएशन में भी नेगेटिव होगा, हमारा फिजिकल इंटरेक्शन भी लोगों के साथ नेगेटिव होगा। तो रोज 95% of our thoughts are repetitive and negative. Behavior will be negative. Feelings will be negative. क्या होगा, कैसे होगा, डर लगता है, कैसे होगा? Every day hundreds of people are giving us calls. डॉक्टर साहब कैसे करें, क्या करें? How do we modify negative feelings, negative emotions and same negative life? अगर हमको परिवर्तन करना है, if we want to respond positively in a situation, अगर हमको पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव इमोशंस लाने हैं, अगर हमको पॉजिटिव फीलिंग्स लानी है, तो हमको पॉजिटिव बिहेव करना पड़ेगा। अगर हमको पॉजिटिव बिहेव करना है तो हमको पॉजिटिव चॉइस लानी पड़ेगी।
और पॉजिटिव चॉइस लानी पड़ेगी, तो विचारों को कैसा बनाना पड़ेगा? बताइए, कैसा बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। दैट्स द की, दैट्स द की। नींव पर स्ट्राइक करना पड़ेगा। इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हेयर, यहां से निकल रहा है। इट्स कमिंग फ्रॉम योर माइंड। लाइए अपने रिलेशंस को, अपने परिवार को, अपने संबंधों को सामने। किसी भी सिचुएशन, परिस्थिति को लेकर सामने आ जाएगी और उसमें एनालाइज करिए कि व्हाई डिड आई बिहेव द वे आई बिहेव्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। मैंने ऐसा क्यों उस परिस्थिति के अंदर बिहेव किया? क्यों? क्योंकि मेरा मन उसके अंदर नेगेटिव विचार लाया था। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर को मैंने नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव वे से डील किया। अगर हम अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो हमें प्रोसेसर को, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। दैट अवर लाइफ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग। वी हैव टू रीडिजाइन अवर लाइफ। आप लोगों में से कितने लोग, कितनी बारी आपने कितने लोगों के मोटिवेशनल लेक्चर सुने हो? सुना है आपने या नहीं सुना? हैव यू हर्ड मेनी मोटिवेशनल स्पीकर्स और नॉट? यस और नो? बताइए। यस सर, बहुत सुने हैं सर। बहुत सारे सुना होगा आप। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग कभी कभी बोलते नहीं है ना, कई लोगों का आपने एड देखा है कि ही इज अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, ही मोटिवेट्स यू वेरी नाइसली? यस और नो? होता है सभी के साथ होता है। एक बात बताऊं मैं आपको बड़ी मजे की, nobody in this world has the power to motivate. This is the biggest paradox of it. जब हम समझते हैं ना, he's a great motivational speaker, he motivated me, nobody can motivate you. There is only one person in the world who can motivate you, and that is only you yourself. You have the power to motivate yourself. What people call them as motivators, we can only inspire you to motivate yourself. That's the key. If you redesign your own thoughts, ये कौन करेगा? आपको करना है। You have to redesign your own thoughts. मेरे को नहीं करना है। आपको अपने मन में एक पावरफुल स्टिमुलस देखना है और वो पावरफुल स्टिमुलस देते ही आप अपने थॉट्स को रीडिजाइन करेंगे और वो आपके फ्यूचर को डिजाइन कर देंगे। You will start creating everything in your life. Everything. It is pertinent for all of us, very important for all of us to understand कि अगर हमको चेंज करना है तो हमको विचारों को ही परिवर्तित करना पड़ेगा। You are consequence of what you are thinking. अगर हम लोग कॉन्सिक्वेंट हैं, अगर हमारी लाइफ के अंदर हम विचारों को ही सामने लाते हैं, तो विचार हमारे कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए बताइए आप लोग? पॉजिटिव होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए? बताइए कैसे होने चाहिए? बताइए कैसे, बताइए। हाँ, मुझे देखो तीन लोग दिख रहे हैं, आप लोग बहुत सारे लोग हो हमारे साथ, 30-40 लोग हैं, फैमिली की तरह। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द स्मॉलेस्ट गैदरिंग्स आई एम एड्रेसिंग। तो बहुत मजा है, इट्स लाइक अ फैमिली। तो आज मुझे बताओ कि हमारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए? म्यूट करो, अनम्यूट करो। पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए, नेचुरली। दैट्स द की, दैट्स द की। अगर हमको अपने लाइफ को चेंज करना है, इफ वी वांट टू इनकलकेट एंड डिजाइन अवर लाइफ, आज अपने जीवन में अपने विचारों को परिवर्तित करो। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एवोल्यूशन, माय डियर फ्रेंड्स। इसी को एवोल्यूशन कहा जाता है। आज हम लोग अपने उम्र से बड़े होते चले जा रहे हैं। While growing old is mandatory, we must understand growing up is optional in our life. That is very, very important for us. Growing up is a natural personal choice. उम्र तो हम लोगों की बड़ी होती ही रहेगी, है ना? बुजुर्ग तो हम लोग होते ही जाएंगे, लेकिन विचारों में मैच्योरिटी आना, सकारात्मकता आना, वो हमारी इंडिविजुअल चॉइस है। क्यों? क्योंकि हमारा एक एक सकारात्मक विचार हमको सकारात्मक वाइब्रेशंस कैसे होंगे? आप देखो ना, अपने घर में एक बार ही अपने परिवार के साथ बैठे, अगर कुछ लोग आज भी अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तो अगर हम लोग सब साथ में बैठते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारा विचार, एनर्जी कैसी बनेगी घर के एनवायरनमेंट में? पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी? पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। पॉजिटिव एनर्जी हमको आउटलुक कैसा देगा? पॉजिटिव आउटलुक देगा, मोटिवेट करेगा,
हमारा परसेप्शन पॉजिटिव होगा, हमको सक्सेस मिलेगी। जब मैं किसी केस को ऑपरेट करने जाता हूँ, कई बार कोई कॉम्प्लेक्स केस होता है, कार्डिक केस होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स केस में, डिफिकल्ट केस में अगर मैं जाने से पहले सोचूं कि पता नहीं मैं ऑपरेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं ये केस खराब ना हो जाए, मेरे को नहीं लगता इसमें हमें सक्सेस मिलेगी, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द चांस ऑफ सक्सेस? दे विल ऑटोमेटिकली गो डाउन। बट अगर आप लोग सोचते हो नो, आई हैव द पावर, मैं अपने मन में एक ब्लूप्रिंट बनाता हूं, सकारात्मक सोचता हूं, ऑटोमेटिकली द मोमेंट आई स्टार्ट क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव विचारधारा मेरे लिए नेचुरली सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, दिस इज साइंस प्रूवन। मैं आपको कभी और दिखाऊंगा हाउ ब्यूटिफुली योर ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग कैन पर्टिकुलरली change the way you are creating and seeing your own life. Very, very important for all of us to understand. Very, very pertinent for all of us to understand. So, we must understand. Pessimism will lead to weakness. हम बच्चों को बोलते रहे, अरे ये बच्चे तो आजकल के पढ़ते ही नहीं है, बच्चे तो खाएंगे नहीं, बच्चे तो ये नहीं करेंगे। Why should we? We should instead think, मेरे बच्चे are perfect. My family is perfect. My relations are perfect. Everything is positive. I have to inculcate and give that energy into my family. I have the power. We have to inculcate that positivity. क्यों? क्योंकि आपकी एक एक सकारात्मक विचारधारा आपको स्वयं इन्फ्लुएंस करती है, आपके रिलेशंस को पावरफुल इफेक्ट डालती है, और आपके नेचर, फैमिली और फूड पर भी पावरफुल असर डालती है। इट इज अफेक्टिंग, ये वाइब्रेशंस हमारे मन से रेडिएट होती हैं। These vibrations are continuously radiating from our own life. It is very, very important for all of us to understand. It is very important for all of us to understand. तो आज अगर हमको बैलेंस लाना है तो पॉजिटिव विचार हमको लाने पड़ेंगे, सकारात्मक विचार। आज के बाद कल से हम लोग आए तो हाई ये क्या होगा, कैसे डिजीज के अंदर जाएगा, हमारे बिजनेस को क्या होगा? नो, even if something wrong is happening, even if things are not going to happen or happening properly, मेरा विचार, मेरी एनर्जी पॉजिटिव जानी चाहिए। It has to go. And remember, if 50 people are continuously inculcating positive energy, we have the power to transform the situation. हम अपने संकल्पों के द्वारा उस परिस्थिति को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपने संकल्पों को अगर हम पावरफुल बनाना चाहते हैं तो थर्ड पावरफुल टूल है, वो है इमोशनल डाइट। रोज भोजन खाते हैं ना हम लोग, भोजन खाते हैं ना कि भाई हेल्दी डाइट खाओ। आजकल अलग अलग गाइडलाइंस आ रही हैं, ये खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे खाना है, आयुष की गाइडलाइंस आ रही हैं। लेकिन जैसे हम भोजन खाते हैं इसी प्रकार अपने मन को हम क्या भोजन आजकल दे रहे हैं, चेक करो। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, एवरीथिंग, दैट कंटिन्यूअस सेंस ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन। कंटिन्यूअसली फियर को हम लोग इंजेस्ट करते हैं, अनसर्टेनिटी को इंजेस्ट करते हैं। हमारे मोबाइल पर भी हमको बार बार वो फीडबैक मिलता है, और उस भोजन को हम खुद भी खाते हैं, उस भोजन को हम लोग खुद भी खाते हैं, और उसको खाकर हम लोग खुद अपने तक रखते हैं या हम बाकियों को भी खिलाते हैं? डर बताइए, बताइए क्या करते हैं हम लोग? हाँ, सबको खिलाते हैं सर, फॉरवर्ड करते हैं, तो खिलाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं ना। कितना बढ़िया है। तो हमने खुद भी जहर खाया, टॉक्सिक डोजेस में खाया, कम नहीं खाया। अभी आप बैठोगे जाके फटाफट टेलीविजन खोलोगे, यू विल से चल यार छोड़ो, बहुत अनवाइंडिंग हो गया, लेट अस हैव अ ग्लास एंड लेट अस अनवाइंड आवरसेल्व्स एंड लेट अस हैव अ टेलीविजन। और उसके बाद क्या इंजेक्शन जाएगा, देखो यार मुंबई में क्या हो रहा है, देखो यार दिल्ली में क्या हो रहा है, देखो यार ये व्यक्ति क्या कर रहा है। कंटिन्यूअसली इंजेस्टिंग दैट फियर, एंड आई विल शो यू व्हाट हैपेंस। Listen to what happens when we are ingesting fear. जैसे ही हम लोग अपने जीवन में डर और नेगेटिविटी को लाते हैं, ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है। देखो इसको ध्यान से समझना। आपके रैशनल थिंकिंग ब्रेन होता है और एक होता है इमोशनल ब्रेन। जैसे ही हम लोग अपने जीवन में फियर और अनसर्टेनिटी और इमोशंस को लाते हैं, तो वो हमारे रैशनल थिंकिंग ब्रेन को
ओवरटेक कर लेता है, उसको फिनिश कर देता है, उसकी सोचने की शक्ति को समाप्त कर देता है और हमारा इमोशनल ब्रेन काम करने लगता है, जिसको अमिगडाला कहा जाता है, और वो हमारे रैशनल ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। और जब ऐसा होता है तो आपकी गाड़ी, आपकी मन की गाड़ी आप नहीं चलाते हैं, आपका डर चलाता है। यू आर नॉट ड्राइविंग योर कार, योर फियर इज ड्राइविंग योर कार। तभी आप लोगों से मैं एक बात पूछूं, आप लोगों से एक बात पूछूं, सभी लोग आंसर करेंगे इस चीज का? सभी लोग करेंगे? हाँ, 3 लोग कर रहे हैं, लेकिन और लोग भी करेंगे मेरे साथ पार्टिसिपेट, करेंगे या नहीं करेंगे बताइए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेंगे। एक चीज का, अच्छा रिकी जी भी अब मुझे दिख रहे हैं, मुझे एक चीज का आंसर दीजिए। जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, तो हम कभी कभी यही वर्ड यूज करते हैं कि भाई इसकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। होता है या नहीं होता, बताइए? होता है सर, होता है या नहीं होता? होता है। Yes. नेचुरली होता है ना। दैट इज व्हाई, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, दिस इज दी की। जैसे ही हम लोग अपने जीवन में इमोशनल गैमेट या इमोशनल सिस्टम को सामने ले आते हैं, हमारी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वी डिस्ट्रॉय अवर रैशनल थिंकिंग ब्रेन। और आजकल लोगों का क्या हो रहा है, वही तो कर रहे हैं। ट्रैफिक जैम को ले आइए, फिर ट्रैफिक जैम को सामने ले आइए। जैसे ही ट्रैफिक जैम आया, कुछ लोग चढ़ेंगे, अपनी गाड़ी के ऊपर भी चढ़ जाएंगे, चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे को गालियां भी देंगे। कई लोग तो आजकल एक दूसरे के लिए एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध में हमारा रैशनल ब्रेन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आज थर्ड एक्सरसाइज जो हम सब लोग आपस में जीवन में प्रण करेंगे, करेंगे सभी मेरे साथ? हाँ, करेंगे। मैं आपको लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं करने को बोलूंगा, मैं आपको कहूंगा केवल एक दिन इस चीज को अपने जीवन में प्रैक्टिस करना है। केवल एक दिन अपने जीवन में इस चीज को प्रैक्टिस करना है। वो है स्टॉप टॉक्सिक कंजम्पशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस। नो डाउट टेक्नोलॉजी ने हमको वाइजर बनाया है, हमको स्मार्ट बनाया है और हमको फास्ट बनाया है। एक सेकंड में हम लोग मोबाइल से कनेक्ट होते हैं। देखा, फट 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 कनेक्ट किया। अभी आप बात कर रहे थे ना, तरुण जी मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन तरुण जी ने बोला कि इंडोनेशिया, कंबोडिया, सब लोगों से हम लोग कनेक्ट हो गए। वी वर ऑल कनेक्टेड। वी आर फास्ट, वाइज एंड स्मार्ट ह्यूमन बीइंग्स। वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। बट मेरा आप सब लोगों से एक प्रश्न है, सब लोगों से एक प्रश्न पूछिए अपने आप से, आर वी मोर हैप्पियर इन आवर लाइफ? आर वी मोर हैप्पियर इन आवर लाइफ टुडे? While our bank balances have soared, लेकिन जीवन में जो सुख और शांति की आप लोग परिकल्पना करते थे, जो जीवन में चैन हमारी लाइफ में होना चाहिए था, वो चैन जो हमको मेटेरियलिस्टिक ट्रेजर से, बड़ी गाड़ियां ड्राइव करके हमको नहीं मिल सकता, हमको बड़े बड़े मकानों में रहकर नहीं मिल सकता, लग्जरी के अंदर नहीं मिल सकता। और अगर ऐसा होता दुनिया का सबसे अमीर आदमी लॉजिकली सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था ना। लेकिन आज ऐसा तो नहीं होता है ना। Why? Because today we are chained completely by the technology. जिस टेक्नोलॉजी को हमने डिजाइन किया है, बच्चों को हम लोग आईफोन, आईपैड, बेस्ट स्कूल, सब कुछ हम लोग डिजिटल बना देते हैं। उन बच्चों को हम लोग सब कुछ हाई टेक दे देते हैं। बच्चे भी बैठते हैं ना, आपके फैमिली भी बैठे होंगे आपके साथ, हमने सब कुछ उनको हाई टेक दे दिया। लेकिन मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, क्या आपकी लाइफ में आपने हाई टेक के साथ साथ उनको हाई टच भी दिया? टच इज द इमोशनल कॉन्टैक्ट दैट वी नीड टू हैव इन आवर लाइफ। कंटिन्यूअसली कंज्यूमिंग फियर एंड नेगेटिविटी, continuously consuming takes away the joy and happiness in our relations. परिवार में, दोस्तों के साथ, अपने उनके साथ हमको कनेक्शन अपने मोबाइल से नहीं चाहिए। एक फैमिली में आप एक कमरे में बैठे हैं, आपके बच्चे दूसरे कमरे में बैठे हैं, हम कहेंगे वी आर वेरी कनेक्टेड फैमिली। क्यों? क्योंकि एक ही घर में टेक्नोलॉजी के द्वारा आज हमने अनेक घर बना लिए। चेक करना अपने, एक घर अनेक घर बना लिए हैं। बच्चे टेक्स्ट करेंगे मम्मी को, हाउ आर यू ऑन व्हाट्सएप, पापा कहेंगे नीचे बैठे हुए मम्मी कि बेटा वी आर एब्सोल्युटली फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, कम डाउन, हाँ हाँ हम आएंगे बिल्कुल, खाना अलग खाते हैं। दिस इज द लेवल एंड फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन दैट वी ऑल हैव क्रिएटेड एंड वी लेबल इट एज वी आर एडवांस ह्यूमन बीइंग।
हम लोग बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस है ना, हम लोगों ने अपने बच्चों को बड़े बड़े साधन दिए, वी हैव क्रिएटेड पैलेशियल हाउसेस. इट इज अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव कंप्लीटली बिकम अ गैमेट ऑफ नेगेटिविटी. इट इज हैविंग कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट. That sense of connection, this is the phone. आप भी अभी सब लोग बैठे होंगे, कुछ लोग फोन पे लगे हैं, कुछ को हाथ में फोन है. This gadget, that continuous gadget with us, that false sense of connection कि मुझे करना है, मुझे यूज करना है फोन, मुझे यूज करना है. अभी रिसेंटली स्टडी आई थी साइंस की, आई विल डिस्कस विद यू समडे. उसमें दिखाया कि जो लोग डिजिटल एडिक्ट्स होते हैं और जो लोग ओपीएम एडिक्ट्स होते हैं, दोनों के ब्रेन्स को जब स्कैन किया गया तो दोनों के ब्रेन्स में सिमिलर ब्रेन चेंजेस आए. डिजिटल एडिक्ट्स एंड ओपीएम एडिक्ट्स. This is the level of negativity, this is the level of life that each one of us leading to. दोस्तों, आज हमको एक बहुत सुंदर प्रिंसिपल अपनी लाइफ में फॉलो करना है. एक दिन के लिए करेंगे मेरे साथ? करेंगे सभी लोग एक दिन के लिए? पक्का? हम सब कर दीजिए, यस और नो? क्या करेंगे? एक दिन के लिए कर, ज्यादा नहीं. डोंट डू इट. केवल एक दिन के लिए. एक दिन में अपनी एनर्जी को देखना, एक दिन में अपनी एनर्जी को देखना और एक दिन बाद अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होते हुए. एक दिन के लिए हमको क्या करना है? 60-40-60 गेम खेलना है. मॉर्निंग 60 minutes when we get up, first 60 minutes of the day we are going to have e-free life. First 60 minutes of our day हमको मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गुड मॉर्निंग नहीं करनी है. सवेरे उठते ही हम मोबाइल को ढूंढेंगे, कहाँ है मेरा मोबाइल, हाँ स्टेटस देखूं. उठते ही सिरहाने पर हम लोग देखेंगे रात को किसका मैसेज आया. डिफिकल्टी होगी. इट इज इजी, बट हम उसको करने की कोशिश करेंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगी. यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. फर्स्ट 60 मिनट्स कल मॉर्निंग में आप ई फ्री जोन अपनी लाइफ में क्रिएट करो. गुड मॉर्निंग डिजिटल. अच्छा म्यूजिक सुनना है सुनो, अच्छा बुक पढ़ना है पढ़ो. हम लोग मेडिटेशन करते हैं मॉर्निंग में, वंडरफुल, वेरी नाइस. फिर 60 मिनट्स के बाद यू कैन यूज एज मच मोबाइल एज यू वांट. देन इन इवनिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद योर फैमिली फॉर 40 मिनट्स, जब परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जब हम लोग बैठे तो अपने परिवार को सबको साथ डाइनिंग टेबल और पोस्ट डिनर अपने साथ बिठाओ और उस समय इस फोन को हटाकर सामने रख दो. स्विच ऑफ दैट फोन या उसको डिजिटली कंप्लीटली हटा दो. बच्चों से, माता पिता से, उनसे बात करना है तो लुक इनटू द आईज एंड कनेक्ट विद ईच अदर. Mere presence of iPhone in our family will decrease the meaningful conversations. They will destroy the meaningful conversation. They will take away the joy of meaningful conversation. So 40 minutes of the day हमको अपनी फैमिली के साथ विदाउट मोबाइल निकालना है. पॉसिबल? पहले तो हम लोग पूरे 24 घंटे निकालते थे जब हमारे पास मोबाइल होता ही नहीं था. आप लोगों को ध्यान भी होगा अपना बचपन, सोच कर देखिए. लेकिन आज उस मोबाइल को होने के कारण 40 मिनट भी हमको मुश्किल लगा. एंड लास्ट 60 मिनट्स ऑफ योर डे, जब हम सोने जा रहे हो, इस मोबाइल पर, ट्विटर पर गुड नाइट करते करते कंटिन्यूअसली यूजिंग दैट मोबाइल हमको नहीं करना है. 100% मुझे लगा आपके रूम में 100% last 60 minutes of your day, 100% last 60 minutes of your day have to be, mandatorily have to be completely e-free. रात को सोते हुए आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इज कंप्लीटली कनेक्टेड. यू आर कनेक्टेड एब्सोल्युटली. तो जो आप अपने मन में डालेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा और आप देखेंगे आपका स्लीप उसी प्रकार से बाहर, आपको उस प्रकार की नींद अनुभव. 1440 मिनट आपको एक दिन में मिलते हैं. 1440 minutes is what each one of you are gifted every day. And I am asking only 160 minutes out of your time. Possible or not possible? बताइए. Possible or not possible? Possible. ना? एक दिन आप यूज करके देखना, बिल्कुल पॉसिबल करेंगे. आप देखना, एक दिन आप इसको करके देखो, आप
कि लाइफ, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, आपका एनर्जी लेवल, आपके फैमिली इंटरेक्शन, जिनके लिए आप साइकोलॉजिकल, देखो स्कूलों में साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, इज दिस द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी लीड? तरुण जी से पूछो, हम लोग जब बचपन में कभी बैठते थे, जब हम लोग साथ में होते थे, आपके स्कूल में कभी साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते थे? मेरे स्कूल में तो कभी नहीं थे, कभी भी नहीं होते थे। आज हर स्कूल में मैंडेटरी साइकोलॉजिकल काउंसलर्स। व्हाई? बिकॉज वी आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम गिविंग टाइम टू ईच अदर। आज हम एक दूसरे को समय, परिवार को समय देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि हमको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। The fourth exercise that each one of us should do is to create emotional balance. Emotional balancing is one of the most powerful tools. जैसे ही हम लोग इमोशनल बैलेंस को क्रिएट करते हैं, हमारी लाइफ में बैलेंस आ जाता है। लेट अस प्ले अ वेरी ब्यूटीफुल गेम। लेट अस प्ले अ वेरी ब्यूटीफुल गेम। आप लोगों से मैं एक बात पूछूंगा, एंड हु विल वॉलंटियर टू आंसर मी? एनीबॉडी, एनी वॉलंटियर्स? टेक अस, बहुत सिंपल सिचुएशन है, बहुत सिंपल सिचुएशन। हु विल आंसर? क्षितिज विल यू? ओके, तरुण जी विल आंसर। ओके, परफेक्ट। नाउ टेल मी दिस वेरी रियलिस्टिक लाइफ सिचुएशन। आप देखना इस चीज को और इसमें एनालाइज करना, एंड मुझे मालूम है जो आपका आंसर होगा वो सबका आंसर होगा, सब अपना सिर हिला कर। तरुण जी, आपके घर में नॉर्मली, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपके घर में नॉर्मली आपके बच्चे 3 बजे या आपकी वाइफ 3 बजे अपने कार्य से वापस आ जाती है, हाइपोथेटिकल। एक दिन जब आप अपने घर में बैठे हुए हैं, 3 बज गए हैं, लेकिन एक घर में जिस व्यक्ति को 3 बजे आ जाना चाहिए वो 3 बजे नहीं आता है, बच्चे या वाइफ या कोई भी हो सकता है। आप उनको फोन लगाते हैं, उनका फोन आता है स्विच ऑफ या आउट ऑफ रीच। 3 की जगह 3:30 होते हैं, 4 होते हैं, 4:30 होते हैं, 5 हो जाता है। आपके मन में किस प्रकार के विचार आए? पॉजिटिव या नेगेटिव? सिर्फ इतना बताइए पहले मुझे। See, you obviously feel very insecure if your loved ones are इनसिक्योर, not नेगेटिव, around you. बस सिर्फ ये आंसर, नेगेटिव विचार आएंगे। राइट? एग्रीड? एक Correct. नाउ अब मैं आपको ये कहता हूं, एंड एवरीबडी विल रेजोनेट, नोबडी विल बी डिफरेंट। नाउ 5 की जगह 5:30 होते हैं, 6 होते हैं, आपके पास आपका मोस्ट फेवरेट भोजन आता है, आप एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, 6:30 की 7 भी बज जाते हैं। आपको वो जो आपका चॉइसेस भोजन है, आपका फेवरेट टेलीविजन सीरियल है, आपको खाने का मन करेगा या आप एंजॉय उसको नहीं करेंगे? Not at all. नॉट एट ऑल। 7:30 बज जाते हैं। अब आप बताइए, वो जो नेगेटिव थिंकिंग है, क्या पॉसिबल है कि वो कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग या वर्स्ट पॉसिबल इमेजिनेशन में बदल सकती है? पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? Completely possible. पॉसिबल है। और 8:30 बजे जैसे ही आपके घर पे घंटी बजती है, आप देखते हैं जिस व्यक्ति को आप याद कर रहे थे वो आपके घर में, आपके बच्चे या वाइफ खड़े हुए, और आपका सारा स्ट्रेस जो है वो गुस्से के रूप में निकलता है। अरे भाई, क्या हो गया था, कैसे हो गया था? तो हुआ कुछ भी नहीं था। नथिंग हैड एक्चुअली हैपेंड इन योर लाइफ, बट उन 3 घंटों में हमने क्या किया? हमने केवल एक एक्सरसाइज की, हमने कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग की। और उस कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग के द्वारा हमने अपनी लाइफ में वर्स्ट पॉसिबल इमोशंस को क्रिएट कर लिया। दोस्तों, अवर माइंड कैन वर्क लाइक अ प्रोजेक्टर। परिस्थिति आती है, लेकिन उस परिस्थिति को मैग्नीफाई करना और उस परिस्थिति को छोटा बनाना, वो हमारे मन का फंक्शन होता है। और जब भी कोई छोटी या बड़ी परिस्थिति को, कई बार होगा ना, छोटी सी बात होगी तो हम लोग बोलेंगे अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम 10 लोगों को बताएंगे, तुम्हें पता है उसने ऐसा किया। फिर हम 20 लोगों को और फॉरवर्ड करेंगे, आज उस व्यक्ति ने इस तरीके से किया, हमारा मन बहुत डिस्टर्ब है, आज ऐसा तो उसे, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वी आर मैग्नीफाइंग दैट सिचुएशन। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम अपने मन के द्वारा मैग्नीफाई करते हैं तो उस मैग्नीफाइंग इमोशंस के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ, हमारे मन के इमोशंस भी जो सिचुएशन के साथ एसोसिएट होते हैं वो भी मैग्नीफाई होते जाते हैं। अगर छोटी सी खुशी होगी, हम उस खुशी में शामिल होते हैं तो वी कैन एंजॉय दैट स्मॉल सिचुएशन इन अ वेरी नाइस वे। लेकिन अगर हम हर एक की नेगेटिविटी को देखेंगे और उस नेगेटिविटी को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करेंगे तो उसकी नेगेटिव फीलिंग को भी हम लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो चौथा एक्सरसाइज जो हम सबको इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए करना बहुत आवश्यक है,
that we should see these situations as they are. Have that umbrella. परिस्थिति आई है, किसी व्यक्ति ने बिहेव किया है, कोई सिचुएशन को लेकर आ जाइए. एक आप घर में आए, लोगों ने आपके अनुसार बिहेव नहीं किया, आप घर पर आए, आपने एक्सपेक्ट किया था कि वाइफ, हस्बैंड या आपका कोई दोस्त या बच्चे आपको ये देंगे, बच्चे आपके अनुसार कार्य करेंगे, आपका ये सामान यहाँ पर रखा मिलेगा, लेकिन वो आपके अनुसार नहीं हुआ. हम लोग क्या करेंगे? क्यों? मैं थका हुआ घर पे आता हूँ, क्या इतना भी नहीं तुमसे नहीं होता कि तुम मेरे को एक कप चाय पूछ लो, एक गिलास पानी पूछ लो, ये पूछ लो, वो पूछ लो. कंटिन्यूअसली हम इस प्रकार से पूछेंगे एंड वी स्टार्ट अ कंटिन्यूअस गैमट ऑफ इमोशंस. एंड वो इमोशन वहां पर नहीं रहता, उस इमोशन को हम लोग अपने लाइफ में मैग्नीफाई करके वी कैरी ऑन, और उस कैरी को करके हम लोग अपने मूड में बदल देते हैं, अपने टेम्परामेंट में बदल देते हैं, और तब उसको हम पर्सनैलिटी में बदल देते हैं. अगर आज हम लोग केवल एक चीज को देखें, छोटी सी बात है, उसको छोटा ही रहने दीजिए, छोटा रहकर उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए, आप देखेंगे आपकी लाइफ में खुशी और बैलेंस आ जाएगा. अवॉइड कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग. कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग इज वैल्यू न्यूट्रल. वो नेगेटिव भी हो सकती है और साइमल्टेनियसली वो पॉजिटिव भी हो सकती है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस to understand. It is important that जब भी कोई परिस्थिति आती है, we should always maintain emotional stability. The fifth exercise that we should do, maintaining emotional stability. जब भी कोई चीज आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशन हमारी तरफ आती है तो उस नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशन में हम लोग ब्लेम गेम आरंभ करते हैं. उसकी वजह से ये कार्य हुआ, या उसकी वजह से भी नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेरी वजह से कई बार होता है. सेल्फ ब्लेम एंड ब्लेमिंग अदर्स. बच्चों को लेकर आई, बच्चों से कई बार मिस्टेक हो जाती है, हम बार बार बच्चों को ब्लेम करें. परिवार में अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ब्लेम करें. अगर बार बार इस ब्लेम को हम अपने पर्सनल, फैमिली, प्रोफेशनल और सोशल रिलेशंस में लाएंगे तो आप में से कौन बता सकता है कि ब्लेम के साथ एक पावरफुल इमोशन हमेशा एसोसिएट रहता है. जब भी हम ब्लेम गेम खेलेंगे, चाहे हम सेल्फ ब्लेम खेलें, चाहे हम दूसरे को ब्लेम करें, तो उस ब्लेम के साथ एक इमोशन हमेशा कौन सा साथ में आएगा? बताएंगे कोई भी? गुस्सा. गुस्सा आएगा. ब्लेम में गुस्सा आएगा. एनीबडी एल्स? दैट एक्यूरेट आंसर. एंगर इज ऑलवेज देयर. ब्लेम के अंदर एंगर भी आ सकता है. और क्या आएगा? विच इज वेरी वेरी हार्मफुल, विच कंप्लीटली हैम्पर्स योर कैपेबिलिटी. आपके आउटपुट को डिस्ट्रॉय कर देता है. फ्रस्ट्रेशन आएगा. वेरी नाइस. एंगर, फ्रस्ट्रेशन. एनीबडी एल्स? कम ऑन, आंसर. एनीबडी एल्स? Negative emotions. Very Negative good. emotions. Negative emotions would be there. Anybody else? और बताइए, एक चीज और बताइए. Nitin, are you there? Anybody else? Yeah, tell me, what will be the emotion that will be coming? Anybody? ब्लेम के साथ एक पावरफुल इमोशन जो हमेशा एसोसिएट होता है, वो सदा ध्यान रखना, वो है गिल्ट फीलिंग. जब भी हम किसी को ब्लेम करते हैं या स्वयं को ब्लेम करते हैं तो ब्लेम के साथ इमीडिएटली गिल्ट आ जाता है. बच्चों को ब्लेम करेंगे तो उनके अंदर गिल्ट आएगा, उनकी परफॉर्मेंस कम होगी. स्वयं को ब्लेम करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस कम होगी, हमारे अंदर गिल्ट आएगा. लेकिन नेचुरली वो गिल्ट कभी कभी क्रोध का रूप ले लेगा, कभी कभी नॉन रियलाइजेशन का रूप ले लेगा. और हम जब भी अपने अंदर गिल्ट फीलिंग लाएंगे तो क्या होता है? we lose the clarity of our mind. This is the clear picture. Blaming takes away our ability to see the things with clarity. The same picture in which we were able to see the reflection, we lose that beautiful clarity in our life. दोस्तों, अगर हम लोग इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, केवल अपने जीवन में ब्लेम को हटा दीजिए. प्रॉब्लम है, यू कैन फिक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिक्सिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वन थिंग. टेलिंग अ पर्सन दैट यस दिस इज अ मिस्टेक दैट हैज हैपेंड इज वन थिंग. But continuously blaming other person will destroy the other person's ability to perform in that time, in that particular situation.
That is very very important. आज कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो नेचुरली हम लोग We lost him there, is it? No, sir. Naturally. By the time Dr. Saab joins back, I think we can do the Pachapeki, sir. सॉरी डॉक्टर साहब आपकी आवाज बीच में चली गई थी, आप जब नेगेटिव बोल रहे थे तब से नहीं आई फिर आवाज. आर यू एबल टू हियर मी नाउ? Now it is clear. Okay, now what I'm going to say is, now let us imagine and play a very beautiful game today. इस गेम में बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप देखिएगा. Let us imagine that we all are playing a cricket game. उस क्रिकेट गेम में जब भी बॉलर एक बॉल को फेंकता है और बैट्समैन को आउट करता है, बॉलर के अकॉर्डिंग बैट्समैन आउट है और वो अपील करता है कि वो व्यक्ति आउट है, लेकिन अंपायर उसको, वहां पर बैठा हुआ अंपायर उसको नॉट आउट देता है. तो उन लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है कि उनको वो व्यक्ति आउट दिख रहा है बिकॉज दे आर सीइंग एंड दे आर प्लेइंग द गेम. लेकिन थर्ड अंपायर जो कि उस गेम को खेल नहीं रहा है लेकिन उस गेम में इन्वॉल्व है, ही इज इन्वॉल्व इन दैट गेम, तो वो क्या करता है, वो उस गेम को दूर से देखते हुए, एक एंगल से देखेगा, राइट एंगल से, दूसरे एंगल से देखेगा, बॉलर के एंगल से, बैट्समैन के एंगल से, फील्डर के एंगल से, सब एंगल से देखते हुए वो अपना राइट डिसीजन देता है. और काफी टाइम ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो नॉट आउट को आउट कर दे और आउट को नॉट आउट कर दे. होता है सभी के साथ या नहीं होता, बताइए, होता है या नहीं होता? नेचुरली होता है. क्यों? बिकॉज ही इज डिटैचिंग फ्रॉम द सिचुएशन. once he is detaching from the situation, once he is away from the situation, maintaining an emotional distance is like creating a non-judgmental awareness. वो दूर से देखते हुए उस सिचुएशन में अपना appropriate decision दे पाता है. He is observing the situation from distance. It is very important for all of us to understand that if we want to create a happy life, if we want to create a rational life, we should always understand and detach from the situation before we react. Remember that pause. That pause is the emotional distance that we create. That pause is the ability to become aware of the facts that are actually present in that situation. मेरा सोचना था कि वो व्यक्ति आउट है, सबका सोचना था कि वो व्यक्ति आउट है, अंपायर ने उसको आउट दे दिया, बैट्समैन ने कहा कि मैं नॉट आउट हूं. जब दूर से देखा गया तो पता लगा वो नॉट आउट था. Observing from a distance often in a situation gives us the ability to see the situation as per the facts, to become unbiased, to listen and accept, and it is must in all leadership skills. It is mandatory. We must listen to what other person is saying. बच्चे जब आते हैं, परिवार में जब एक दूसरे आते हैं, एक दूसरे की बात को सुनना, उसको समझना और उसको अपने जीवन में अपनाना, it is very very important. Practice this. आज के बाद अगर हम इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो अपने जीवन में, परिवार में जब भी कोई बात बोले उसकी बात को सुनो. बात को काटना नहीं है, उसको कंप्लीट करके पॉज को यूज करते हुए उसको समझो. बच्चे भी आएंगे, माँ बाप भी आएंगे, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, उनको कहेंगे नहीं नहीं आपका टाइम अलग था, ये गलत है. बच्चों को कहेंगे तुम्हारा ये सोच गलत है, ये गलत है. अंडरस्टैंडिंग, डिटैचिंग एंड ऑब्जर्विंग द थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, वो हमारे रिलेशंस में हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग लाता है, वो हमारे बिहेवियर में पॉजिटिविटी लाता है. दिस इज कॉल्ड द नॉन जजमेंटल अवेयरनेस. दिस सेकंड लास्ट थिंग दैट वी हैव टू प्रैक्टिस. आज हम लोग क्या करते हैं, मास्क पहनकर जाते हैं, हैंड्स को सैनिटाइज करते हैं, एक दूसरे से इमोशनल डिस्टेंसिंग रखते हैं अपने आप को, ताकि हम लोग इन्फेक्शन ना कैच करें.
लेकिन मैं आप सबसे पूछूंगा, ध्यान से देखो मेरी तरफ, हम क्या अपने जीवन में इमोशनल फिजिकल हाइजीन के साथ साथ इमोशनल हाइजीन को भी इनकलकेट कर रहे हैं? आर वी एबल टू इनकलकेट द इमोशनल हाइजीन इन आवर लाइफ? आज एंगर, इरिटेशन, एंजाइटी हैव बिकम द वे ऑफ अवर लाइफ। क्रोध तो नेचुरल है, इरिटेट होना तो जरूरी है, जेलसी, एक दूसरे से आगे बढ़ना, कंपटीशन, criticism, complaint, expectation, these all have become a part and parcel of our life. All negative. Everything giving us so much uncertainty, so much negativity in our life कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम लोग परेशानी का अनुभव करते हैं। आज anger is not our natural state. Hatred and irritation is not our natural state. Our natural ability is to love each other, to accept each other, to appreciate each other. आज एक दिन के लिए अपने नेचुरल स्टेट में हमको जाना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस बोझे को हम अपने मन में कब तक कैरी करते रहेंगे, कब तक लोगों की बातों को, लोगों के व्यवहार को अपने मन में स्थान देना, अर्थात अपने मन को बोझिल करना, अपने मन को नेगेटिव बनाना। आपके घर का कूड़ा, आप सबसे पूछता हूं मैं, आंसर करिए, आपके घर का कूड़ा अगर रोज मैं आपको कहूं, नितिन जी, क्षितिज जी, तरुण जी और तरुण भाटिया, तरुण जैन जी जो मुझे दिख रहे हैं और बाकी सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज बोलता हूं कि अपने घर का कूड़ा रोज अपने घर में संभाल कर 1 हफ्ते के लिए रखो। ठीक है, एग्री करेंगे या नहीं करेंगे बताइए? या रोज सफाई चाहिए? रोज सफाई चाहिए? Yes. रोज सफाई चाहिए। तो घर का कूड़ा जब हम रोज अपने घर में नहीं रखते हैं, तो दूसरों का कूड़ा, दूसरों का व्यवहार हम अपने घर में, अपने मन में रोज क्यों रखते हैं? पूछो अपने आप से, ये किस प्रकार के इमोशंस हमारे जीवन में बाहर लाएगा? लेट अस डू दैट इमोशनल क्लीनिंग इन आवर लाइफ। ये समय जो है ना, आज वायरस वाला, ये हमको सिखाता है कि इट इज टाइम टू होल्ड हैंड्स एंड नॉट ग्रजेस। कब तक हम लोगों की नेगेटिव बातों को लेकर अपने शमशान घाट तक लेकर जाएंगे? हाँ, बोझिल जाएंगे। हल्के आए थे और हल्के हमको अपने जीवन, अपने व्यवहार में जाना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक हम अपने जीवन में लेकर इस नेगेटिविटी को जाएंगे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट चीज, समय हुआ है, बट आई विल wind off in another 5-7 minutes. You have 5 or 7 minutes more? Okay? Please, sir. Yeah, okay with everybody? Yes, sir. Yes. Please. 5-7 Perfect. Okay. Now, yeah, okay. Now, see, and the last exercise that we all have to do in our life is quarantine. जब क्वारंटाइन पे है ना हम लोग, कोई घर पे क्वारंटाइन में, कोई कहीं पर है, इसी तरह परमात्मा हमको बोलते हैं कि एक एक्सरसाइज होती है, वो है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्वारंटाइन इन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वारंटाइन बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। व्हाट इज दिस इमोशनल क्वारंटाइन? आप में से अब कौन वॉलंटियर करेगा? एनी न्यू पर्सन हु कैन कम फॉरवर्ड बिसाइड्स द 3 people who have been answering? Any new person? सिमी भैया को बोलो। कौन करेंगे? I कौन करेंगे? मे आई I can आइडेंटिफाई come. द पर्सन? I can do. कौन बोल रहे हैं? या मे आइडेंटिफाई योरसेल्फ प्लीज? रिकी। ओके रिकी, लुक एट दिस, look at this answer. Are you, just answer this, आपको इसको पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है या आसानी से पढ़ पा रहे हैं? जस्ट आंसर इन वन वर्ड। थोड़ा सा डिफिकल्टी है। थोड़ा सा डिफिकल्टी है। नाउ रीड दिस। आर यू एबल टू रीड इट कंफर्टेबली और नॉट? Yes. Just read it. This is a time of This reflection. is a time of reflection and understanding where we learn from our mistake and start a new Now, cycle. stop it. There is Stop, one stop, thing. stop, stop, Yeah. stop, stop. जो इसमें लिखा है वो ही मैंने इसमें लिखा है। Yeah. Absolutely same. लेकिन इसको आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और इसको आप पढ़ पा रहे हैं। Yeah. Why? What is the reason? One word. What is the Because reason? Space. Yes. Pause. That's the Space. answer. That's the answer. Meditation gives space to your life. विचार आते हैं,
थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन आज हमारी लाइफ ऐसी है, भाग रहे हैं हम लोग, है ना? सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को आके एल्प्रेक्स की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है. This is the kind of life that each one of us are leading today. This is the kind of life that each one of us are leading. Meditation is giving space, observing, stand back and steer. अपने विचारों को देखना, किस प्रकार के विचार हैं, उनकी क्वालिटी को एनालाइज करना और फिर अपने जीवन में जाना. It's about reconnecting better with our own self. It's about rewriting the nature's blueprint in the most powerful way. आज हम लोग कहते हैं ना, हम तो कर्म योगी हैं, हम परमात्मा या किसी उस पर विश्वास नहीं करते. Yes, we all are using our analytical brain, left brain. It's logical, it's decisive, it's scientific, it's realistic, it's reasonable, it's strategic and it's practical. We all are very practical people. कहते हैं ना भाई, प्रैक्टिकल होकर चलो. जीवन में प्रैक्टिकल होना बहुत आवश्यक, प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है. इट्स राइट, बट रिमेंबर, दिस इज गोइंग टू गिव यू ओनली 50% सक्सेस. 50% सक्सेस, but you will be emotionally drained out. If you want 100% success in your life, you have to balance your left brain with your right brain. This is your peaceful brain, your creative brain, your passionate brain, your poetic brain, your loving brain. This is what our life is. This is what we need to balance and revisit and balance our emotional with physical. The reason why we are not able to have that emotional alignment, meditation is aligning ourselves, our soul with supreme soul. परमात्मा को याद करते हैं हम लोग, लेकिन परमात्मा को कौन है, कैसे है, उसको हम पहचानते नहीं. मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं. आज जब लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, लोगों को पर जाके आप देखे, सब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद होंगे. हम सब लोग अपने घर के अंदर थे. क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन को, शास्त्र तो पढ़े लेकिन शास्त्रमय नहीं बनाया है. We have failed to actually inculcate those principles in our own life. याद तो हम करेंगे पूजा के अनुसार. We remember God either because of fear or because of our need. उसको जरूरत या डर के कारण हम लोग याद करते हैं, हम उससे भीख मांगते हैं. This is not what God is us in our life. We must understand that it's a connection of your mind with supreme. It's your connection of your consciousness with supreme consciousness. It's connection of your soul with supreme soul. हम परमात्मा को परम आत्मा बोलते हैं ना. कभी आपने परम शरीर सुना है? सुना है आपने कभी परम शरीर? किसी भी धर्मशास्त्र के अंदर परम आत्मा कहा जाता है. यदि वो परम आत्मा है, परम शरीर नहीं, तो हम उसकी संतान आत्मा होंगे या शरीर होंगे? नेचुरली हम लोग आत्मा होंगे. That is what we need to understand. Look at this. You wanted evidence what meditation does to us? This is the actual pictures of what meditation is doing. This is your brain throughout the day. Throughout the day, this is the way your brain is behaving. It's an anxious brain. It's a depressed brain. It's a weakened brain. See the imbalance between both the groups. Both the brains are completely imbalanced. But the moment you do 15 minutes of meditation, you see there is complete harmony that starts creating between right and left brain. Complete harmony. In 25 minutes, they both are absolutely synchronized. You are better performing, more integrated, and a much beautiful emotional health. One much powerful emotional health in your mind. This is the power that we all have. It's all about positive thinking and positive lifestyle in our life. Let us now understand and do this few minutes of meditation. Let us do this emotional cleaning every day in our life. It's natural for us to be peaceful, to be loving, to be happy, to be powerful, knowledge and pure. जब ये सारे गुण हमारे आत्मा के हैं,
That is what, when we start experiencing bliss in our life. This is the time when we experience bliss in our life. जिसको कहते हैं आनंद. My request to you is now, let us sit in 2 minutes of silence, just few minutes, and I will be giving you a very nice and beautiful words to reflect on yourself, and just come along with me on this journey. Very nice and reflective journey. बहुत आराम से अपने आप को बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए. गहरी गहरी श्वास लेते हुए take a deep breath and start relaxing your body. ऐसा अनुभव करें कि एक एक श्वास के साथ मेरा हाथ, मेरा शरीर बिल्कुल शांत और ढीला होता जा रहा है. अपने सारे ध्यान को अपने विचारों की तरफ केंद्रित करें. Reflect and start observing your thoughts. एक एक विचार जो एक समुद्र में लहरें की तरह उठता है. Very powerful and peaceful vibrations. अनुभव करें आज मेरे मन में लोगों के प्रति, अनेकों के प्रति, मेरे संबंधों में छोटी छोटी बातों पर नकारात्मकता, क्रोध, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? ये मेरा मन है. मेरा मन मेरे अनुसार चलेगा. आइए आज मैं अपने मन के शक्तिशाली और पावरफुल बनाऊंगा. अनुभव करें इस शरीर में विद्यमान एक सीप के अंदर जैसे मोती है, उसी प्रकार इस शरीर में विद्यमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ. पावरफुल कॉन्शियसनेस. ऑब्जर्व योरसेल्फ. सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से वो शांति की शक्ति मेरे मन के एक एक कोने को शांत कर रही है. क्रोध, चिड़चिड़ापन मेरी आत्मा, मेरे मन से सदा सदा के लिए साफ होता जा रहा है. I am a peaceful soul, very peaceful. ये शांति की शक्ति मेरे मन, मेरे शरीर को असीम सुख और शांति का अनुभव करा रहा है. एक एक संबंध में शांति, व्यवहार में शांति, बोल में शांति. अनुभव करें प्यार और खुशी की पावरफुल शक्ति मेरे आत्मा और मेरे मन को बहुत सुंदर रूप से खुशनुमा बना रही है. I am a happy soul, a loving soul. मेरा एक एक विचार, एक एक विचार परमात्मा के प्यार और खुशी से परिपूर्ण है.
I sprinkle and radiate happiness in every relation. हर संबंध में प्यार और खुशी. Experience a powerful aura of protection. I am a protected soul. Very protected. कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. इसी स्थिति में रहते हुए मैं अपना कार्य करूंगी. धीरे धीरे वापस आइए और अपने मन, अपने आत्मा को एक पावरफुल संकल्प दीजिए कि अपने एक एक इंट्रैक्शन को मैं शांति, शक्ति, प्यार और खुशी से परिपूर्ण करती हूँ. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. थैंक यू सो मच. So if you have any questions, any comments or anything that you would like me to answer or anything, you'll be happy to do that. Sir, I'll begin. Thanks a lot, sir, for the session. Amazing session. थैंक यू सो मच. दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया सर आपने. हाँ, मैं सर ये रिपीट करने वाला था कि बड़े सालों से हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि ये बेस्ट वे टू मेडिटेट क्या है. ये तो बड़ा आसान लग रहा था, 2 मिनट में कुछ सीखने को मिल रहा था. नहीं, it's very simple. देखो, meditation is not a difficult phenomenon at all. That is our biggest misnomer. Meditation is very very simple. It's only our own state of mind. Meditation को क्या चाहिए उसके अंदर? उसके अंदर 2 चीजों का यूनियन चाहिए. अगर हम शरीर को परमात्मा से मेडिटेट कराएंगे वो फिजिबल नहीं है. अगर हम शरीर को परम शरीर से कराएंगे वो भी फिजिबल नहीं है. आत्मा, मेरा मन और उसका परम आत्मा, उनसे कनेक्शन इज मेडिटेशन. वेरी सिंपल. डेली इसको प्रैक्टिस करना है. आज के टर्बुलेंट टाइम्स में और आने वाले टाइम में यही एक एनर्जी है जो सदा हमारे साथ कार्य में आएगी. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग. हमारे परिवार, हमारे संबंधों को पावरफुल बनाना, हमारे अंदर लाइफ को सुंदर बनाना, यही ब्यूटी है इस मेडिटेशन की, राजयोग मेडिटेशन की. दिस इज अ वे ऑफ लाइफ. This is not something that you are going to actually change. This is something that we have to experience. This is always going to be a universal phenomenon. इसको अपने जीवन में लागू बनाना. Start your day very beautifully. It is very very pertinent for all of us to understand. This is how we have to inculcate. अपने life में सब जगह इसको inculcate करना है. Doctor, थोड़ा guide करें. Normally, whenever you start meditation, reading the books of spiritual books, और जैसे सुबह पूजा करते हैं, पूजा 5 minutes before when you start this puja, nothing in your mind. When you start doing puja or something else or meditate, जो ख्याल दिमाग में नहीं भी है, वो सब ख्याल दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं. And you are not sometimes connected to your God, but you plan to sit down like that. So please lighten for that. Absolutely perfect. Absolutely perfect. ये होगा ना, बिल्कुल. क्यों नहीं होगा? The moment you start meditation, आप जैसे ही मेडिटेशन करेंगे आपके मन में आएगा यार एक इम्पोर्टेंट कॉल आना है, उस व्यक्ति के साथ खाना खाना है, ये समय हो गया है, उस व्यक्ति को आना होगा. And these thoughts will start interfering. Never fight those thoughts. Very very important. First thing is never fight those thoughts. आपको केवल एक एक्सरसाइज करना है. आपको केवल एक एक्सरसाइज करना है कि हर विचार के आते ही उसको बताना है आई एम गोइंग टू डू दिस. ये कार्य हमें करना है, ये चीज भी मैं करूंगा, लेकिन ये समय मेरे को अपने मन की तरफ ध्यान देने का है. मुझे अपने मन को एनर्जाइज करना है. स्टार्ट आंसरिंग टू ईच थॉट वेरी कंफर्टेबली एंड सिंपली.
उसको डांट नहीं लगाने की तुम अभी क्यों आ रहे हो, लेकिन अपने मन को जैसे ही वो जाएगा, बच्चे जाएंगे, बच्चे छोटे होंगे तो क्या करेंगे, छोटा बच्चा होगा वो इधर भागेगा, वो उधर भागेगा, फिर आप उसे करेंगे, जब उसको आपको खाना खिलाने का टाइम होता है तो आप उसे खिलौना दे देते हैं और खिलौना देकर कहते हैं तू खेलता रहे या टीवी देखता रहे, मैं तेरे को खाना खिलाता है। तो इसी तरीके से उसको प्यार से समझा के अपने मन को अच्छे विचार देंगे। नाउ आई एम अ पावरफुल एंड अ लविंग सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल, और मुझे इस एनर्जी को परमात्मा से लेना है। दैट एनर्जी इज फ्लोइंग लाइक अ सी, लाइक अ ओशियन, लाइक अ शावर, इट इज बेदिंग माय माइंड, और कोई भी विचार आएगा आई विल आंसर। तो इस चीज को जब हम रोज प्रैक्टिस 5 मिनट्स में करेंगे ना, हो जाएगा। प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन, प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन, मेडिटेशन इज टू वे कम्युनिकेशन। प्रेयर में हम किसी को अपनी अरदास रखते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हम कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली दो तरफ से करते हैं। इसको बातचीत कहते हैं। मेडिटेशन इज बातचीत। अभी हम क्या कर रहे थे, वी वर टॉकिंग टू गॉड, दैट एनर्जी इज कमिंग इनटू आवर माइंड। और अगर आप इसको डीपर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर आप इसको कभी भी विद फैमिली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट 45 मिनट्स 1 आवर, जिसको हम लोग इंडिविजुअली कस्टमाइज करके भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू क्षितिज, नितिन और तरुण और whosoever they are willing। तो कभी भी इसको वीकेंड्स पर उसका इन सेशंस को आप अपना स्वयं का नॉलेज, एविडेंस बेस्ड परमात्मा का नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस ऑफ डीपर कनेक्शन एंड मेडिटेशन, उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड दिस विल गिव यू वंडरफुल, इट विल गिव यू अ वंडरफुल लाइफ चेंजिंग। बट रोज करना है, एक दिन नहीं, रोज करना आवश्यक है। वेरी वेरी। Sir, maybe we are a smaller group today, but the message will go a long way. मतलब यहाँ से जो जा रहे हैं वो जरूर कहीं ना कहीं ये बात पहुंचा देंगे कि क्या क्या आज हमने सीखा। It was quite a peaceful. You are right, Kshitij. And you know, this happens very, very commonly, because whenever we have a program, most of us are unable to understand and realize the importance of something that is going to come. Isn't it? This is what happens, you know. This is what happens. Totally agreed. Us, you know, because we are listening it for the first time, and the moment we listen, we say, oh, this is something that is so simple. I have the power to do it. I have the power to change this particular thing. Nobody is going to do it for me. और ये परिवर्तन आप ये नहीं देखना कल कोई कहेगा, या हमें किसी को ये नहीं बोलना कि भाई ये सेशन हुआ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। No, it is good for me. I have to understand and transform in my life. I have to bring this change in my life. I'm not bothered whether other people are going to do this or not, but मुझे करना है। You know, in matters of conscience, opinion of majority does not matter. I have to transform myself. I have to. Totally. I thank a lot of Thank people you. who are watching us on Facebook also. So Thank you. Thank you. It was and a fabulous session, and thank you so much, and thank you to Nitin and Kshitij for organizing this one. Much needed in these times. And I've become a big fan, so I'll keep following you on your social media pages. Thank you so much. Thank you so much. Very nice. Very nice. Thank you. Thank you so अभी much. भी और भी सुनना चाहें, you can go to the YouTube also. There are numerous lectures on Brahma Kumari's organization also, and also on my YouTube channel on BK Dr. Mohit Gupta. तो आप you can always connect, listen, contemplate, but हमेशा ध्यान रखना कि we are only messengers. You have to motivate yourself. ये परमात्मा का मैसेज है. It is not that we are there to. हमें कनेक्ट करना है किससे? हमें सुप्रीम से एनर्जी लेनी है. No महात्मा, no guru is going to give it to you. It's only Almighty. अगर हमारा कनेक्शन ही कहते हैं ना भाई बीच में हम लोग किसी से हटा दें, हम डायरेक्ट कनेक्शन अगर हमारा होता है, we are able to get that energy very very powerfully. उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Thank you and Om thank you, Shanti. sir. Thank you. Big Thank thanks to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you Nitin ji. Thank you Kshitij. Thank you everyone. Thank you, Dr. Saab, for gracing and helping us. I think probably maybe we'll request you for one more session with a much larger audience once the word spreads that people who have missed us, क्या miss किया है उन्होंने. Surely, anytime and any day for you. You're always welcome. Thank you. Thank you, everybody. Have a good evening, sir. Bye. Thank you. Thank you, members. Thank you, friends.